Our today's topic is chemical reaction. Chemical reaction is the first topic of chapter chemical reactions and equations. Before that, we had learned valencies, symbols, and chemical formulas. Chemical formulas. Got it? अब हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट होता है. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनते हैं. ओके, फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस where chemical change involves, means the process where original substance lose their nature and identity and form a new chemical substance with a different properties. It means कि एक ऐसा change जिसके दौरान कोई substance अपनी original पहचान खो के नई पहचान अपनाता है. Let it be, मेरे पास milk है, I have a milk. Milk get converted into curd. Milk have its own original properties. स्वीट होता है, वाइट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है. लेकिन एक केमिकल चेंज आया, एक प्रोसेस हुआ जिसके दौरान मिल्क जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस, LACTOBACILLUS, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है. In the presence of lactobacillus, milk get converted into curd, and curd has lactic acid. Lactic acid means एक प्रोसेस के दौरान मिल्क कंप्लीटली किसी और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एंड दैट प्रोडक्ट इज कर्ड. एंड कर्ड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज राइट दैट मिल्क हैड. मिल्क की जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल कर्ड से अलग है. तो इस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज. The change, chemical change, the change which completely turn the properties into different one is called as chemical change, and the process which involves chemical change is called as chemical reaction. जिन process में chemical change involve होता है उनको हम chemical reactions बोलते हैं. अब कुछ examples हमारे पास और हैं. Another examples are the burning of coal. Burning of coal. कोयले का जलना. As you know, coal means carbon. Coal means carbon. And the symbol of carbon is capital C. तो अगर मैं burning of coal को एक chemical reaction में represent करूँ तो इस तरह से होगा. Coal जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में burn हुआ, हमने इसको जलाया, कोयला काला होता है ना, और सॉलिड होता है, ये सॉलिड है, और जो आपका ऑक्सीजन है दैट इज अ गैस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट व्हेन इट बर्न इट completely change into another product, and that product is carbon dioxide and plus ash. As you know, carbon dioxide is a gas, और ash भी क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट है, बट इट इज अ पाउडरिश फॉर्म. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो कंप्लीटली किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट्स अ केमिकल चेंज, एंड द process involved is called as chemical reaction. Means the burning of coal is considered as a chemical reaction. Similarly, digestion of food is also a chemical reaction. Rusting of iron is also a chemical reaction. Rusting of iron means जंग लगना, आयरन को जंग लगना. आयरन का सिंबल होता है Fe, हमने पढ़ा, ठीक है. आयरन whenever react with oxygen and water, it form a new product that is called as ferric oxide. Ferric oxide. Ferric oxide is a rust. The properties of this iron, which is the original one, and the properties of rust is totally different. Iron is just grayish color. ये ग्रे कलर का होता है, ठीक है, सॉलिड है, मेटल है. But when it react with the oxygen and water, it form a rust which is a
दैट इज ए ऑक्साइड, इट्स अ मेटल ऑक्साइड, इट्स नॉट अ सिंपल मेटल, ये मेटल ऑक्साइड हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी. मेटल ऑक्साइड इज अ बेसिक इन नेचर एंड हैविंग डिफरेंट कलर. द रस्ट हैव ब्राउन कलर, तो रस्ट का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है. ग्रे से ब्राउन में चेंज हो गया, एक तो कलर भी चेंज हो गया, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी चेंज होगी. एज यू नो आयरन इज ए हार्ड सब्सटेंस वाइल द रस्ट इज अ सॉफ्ट सॉलिड सब्सटेंस. ये मेटल है, आयरन इज जस्ट मेटल वाइल द रस्ट इज अ मेटल ऑक्साइड्स विच इज अ बेसिक इन नेचर. द नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं. इन a chemical reaction there are two important things. One is reactant and another one is product. Mean the original substance which take place in a chemical reaction is a reactant. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पहला ओरिजिनल सब्सटेंस होगा उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे and that is called as product. Original substance is called as reactant and the final product, the final substance which is formed after the reaction is called as product. Just taking example, हमारे पास एक example है, let it be हमने water की formation करनी है. We just form the, as in the formation of water we just take hydrogen, that is H2, hydrogen H2 plus oxygen and form water H2O. जैसे यहाँ पे है, हमने वाटर के 2 एटम्स लिए, ठीक है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया. ये हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस थे. प्रोसेस केमिकल चेंज से पहले ये हमारे क्या थे, ओरिजिनल सब्सटेंस थे. इन ओरिजिनल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे. रिएक्टेंट बोलेंगे. जैसे मैं इन दोनों को क्या बोलूँगी, रिएक्टेंट बोलूँगी. ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट, और दीज आर रिएक्टेंट्स. एंड सिमिलरली अब जब हमने इनको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हुई, वाटर की फॉर्मेशन हुई. तो वाटर क्या है, इट इज रिजल्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. ये इनिशियल थे, इनको हमने रिएक्टेंट बोला, और आफ्टर द रिएक्शन जो फाइनल चीज हमारे पास बनी दैट इज अ वाटर H2O. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे. जस्ट टेक द अदर एग्जांपल्स. जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन द presence of air, this is a magnesium, oxygen, they combine with each other, they form magnesium oxide. This is a simple magnesium, this is a oxygen, and this is a magnesium oxide. तो अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम को हमने हवा में जलाया और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये केमिकल चेंज हुआ, मींस केमिकल रिएक्शन हुई. अब इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है, तो उसको हम कैसे मानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. हमने जो ओरिजिनल चीज़ें ली होंगी, जैसे हमने मैग्नीशियम ओरिजिनली दिया था और उसको हवा में हमने रिएक्ट करवाया. जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं दैट मीन्स कंबशन. तो कंबशन के लिए द एसेंशियल नीड इज ऑक्सीजन. सो दीज टू आर रिएक्टेंट्स. These two are reactants, and the product or the substance which is formed after the reaction is called as product. So magnesium oxide is product. Conversion of reactant into product just shown by the arrow, this one. अब मैंने रिएक्टेंट्स इसीलिए लिखा बिकॉज दीज आर 2 रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एक ही बना, इसलिए मैंने प्रोडक्ट एक लिखा. इट डजंट मीन कि हमेशा रिएक्टेंट 2 होंगे और प्रोडक्ट एक ही होगा, नहीं. प्रोडक्ट भी 2 हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी 2 हो सकते हैं.
रिएक्टेंट्स। ओके, हम एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट हो और मोर देन वन प्रोडक्ट हो। ओके, मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी। अगर हमें बोला गया हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब हम इस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, व्हेन heated it produce calcium oxide and carbon dioxide. It means here reactant is only one. यहाँ पे रिएक्टेंट एक है, तो एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने। दो प्रोडक्ट कौन से? हमारे पास एक प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड बना, दूसरा प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो एक प्रोडक्ट से, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, और दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट भी बन सकता है। अगर इसी इक्वेशन को मैं वर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो इसको कैसे वर्ड फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इट अंडरगो अ केमिकल चेंज व्हेन हीटेड to produce calcium oxide plus carbon dioxide. Here we just have one reactant, but product will be two, that is products. तो पॉसिबल है कि एक रिएक्टेंट से टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट भी बनेंगे, और it is also possible that two or more than two reactant से single product भी बनेगा, that is one product भी बनेगा।